کہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس وہاں پر قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا، حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ لوگ نکلے اور میدان طیہ میں جا کر یہ بیٹھ گئے، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب قوم عمالقہ سے جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ وہاں پر وہ لوگ جنگ کرنے سے انکاری ہو گئے، نافرمانی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور اسی میدان میں ہی انہیں قید کر دیا۔ حالانکہ اس میدان میں چاروں طرف دیواریں نہیں تھی، کوئی باڑ نہیں لگی ہوئی تھی، ایک قدرتی بات تھی۔ اس کے باوجود وہ لوگ میدان سے نکلنا چاہتے لیکن نکل نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان پر عذاب تھا کہ وہ اس میدان سے نکل نہیں پاتے تھے۔ اب 40 سال قید رہنے کے بعد اب انہیں وہاں سے بیت المقدس جانے کا موقع ملا، آزادی ملی۔ اتنے میں اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ پھر یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جان نشین تھے حضرت یوشع بن نون رحمت اللہ علیہ، ان کی قیادت میں اب میدان سے نکل کے یہ بیت المقدس جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ تو اب اللہ پاک نے انہیں حکم دیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو تو تم یہ لفظ کہتے ہوئے داخل ہونا، حطۃ حطۃ، یعنی ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمارے گناہ معاف ہوں۔ جب تم یہ کہو گے پھر ہم نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ لیکن جب یہ انہیں حکم دیا گیا کہ تم ایسے کرو، داخل ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، انہوں نے یہ بات نہیں کہی، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، بلکہ انہوں نے اس بات کو بدل دیا۔ اسی بات کو آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی انہوں نے وہ بات نہیں کہی بلکہ اس کو بدل دیا اور الفاظ کہنے لگے۔ ان پر آسمان سے عذاب نازل ہوا، فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پہلے انہوں نے نافرمانی کی تھی، جنگ کرنے کا انہیں حکم ہوا تھا، جنگ کرنے نہیں گئے، نافرمانی کی۔ اب اس گناہ کے بخشش کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تم بیت المقدس جاؤ اور وہاں پر انبیاء کی قبریں ہیں، اور اس شہر میں تمہارا جو شہر تھا وہاں جا کے رہو۔ اب دوبارہ اب یہ لوگ پھر نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی کئی نافرمانیاں کر چکے تھے، من و سلوہ اترا، اس وقت انہوں نے نافرمانیاں کی، ان کو کہا گیا کہ من و سلوہ کو بچا کر نہ رکھو، حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اس پر بھی انہوں نے فرما برداری نہیں کی۔ پھر اس کے بعد اب یہاں سے نکلے، بیت المقدس جانے کا حکم ہوا، یہاں نافرمانی کی، کہا کہ اپنی بخشش کی دعا مانگو، یہ بخشش کی دعا بھی نہیں مانگی۔ فرمایا کہ اب تم دوسرا یہ کام کرنا ہے بیت المقدس میں کہ اپنے سروں کو جھکا کر جو مین مرکزی دروازہ ہے اس سے مین گیٹ سے داخل ہونا ہے۔ انہوں نے اس کو بھی بدل دیا اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی بجائے، عاجزی کرنے کی بجائے، وہاں جب بنی اسرائیل داخل ہوئے تو انہوں نے پہلے اپنے اندر پاؤں داخل کیے، اس کے بعد باقی جسم کو اندر کیا۔ یہ انہیں حکم تھا، اس کو بھی انہوں نے بدل دیا۔ تو اب اس بدلنے کا انجام یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان پر عذاب یہ نازل ہوا کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی، ان میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور آنن فانن 70,000 اسرائیلی اسی وقت فوت ہو گئے لمحے بھر میں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا، ان پر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب تھا۔ اس حدیث شریف میں جہاں فرمایا گیا کہ طاعون کی بیماری میں اسرائیلی مبتلا ہوئے اور 70,000 اسرائیلی فوت ہو گئے اسی بیماری میں، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اللہ کا عذاب ہے۔ طاعون کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن اگلی حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرمایا کہ
पिछली उम्मतों के लिए अजाब था, लेकिन इस उम्मत में अगर कोई मोमिन शख्स ताउन की बीमारी में मुब्तला हो, जिस शहर में हो उसी में रहे और उस पर सब्र करे, अगर उसी हाल में वो फौत हो जाए तो अल्लाह उसे शहीद का दर्जा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाए, पिछली उम्मतों के लिए ताउन क्या था? अजाब था, और इस उम्मत के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ये रहमत है कि बंदा अगर ताउन की बीमारी में फौत हो जाए तो ये उसके लिए अजाब नहीं बल्कि रहमत होगा कि उसको शहीद का दर्जा मिलेगा। अच्छा, अब एक बात यह है कि बनी इसराइल को हुक्म हुआ बैतुल मुक़द्दस में जाओ और अपनी नाफरमानी की बख्शिश मांगो, ये कहते हुए दाखिल हो हित्ताकुन, हमारे गुनाह मुआफ हो, हमारे गुनाह मुआफ हो। तो बात यह है कि वहां बैतुल मुक़द्दस में जाकर ही अपने गुनाहों की माफी मांगो। अल्लाह ताला तो किसी भी जगह पर बंदा उससे दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है, उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। बनी इसराइल को यह हुक्म क्यों दिया गया? तो इसकी वजाहत फरमाते हुए उलमा ने फरमाया कि वहां बैतुल मुक़द्दस जहां मस्जिद अक्सा है, वहां जाने का हुक्म इसलिए दिया गया कि वहां अंबिया की कब्रें मौजूद थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कई सारे अंबिया की कब्रें वहां मौजूद थी, तो इसलिए उन्हें वहां बाबरकत जगह जाने का हुक्म दिया गया। उन्हें बाबरकत जगह पर जाने का हुक्म दिया गया कि उनकी बरकत से अल्लाह पाक इनके गुनाहों को माफ फरमाएगा। अब इससे हमें मालूम हुआ कि वाकई अल्लाह पाक सुनता तो हर जगह है, दुआ कबूल भी करता है, दुआ कबूल भी करता है, गुनाहों को माफ भी फरमा देता है। लेकिन कुरान करीम से हमें यह सबक मिला कि जहां अल्लाह के नेक बंदे हो, अंबिया हो, सहाबा हो, अहले बैत हो, औलिया हो, स्वालिहीन हो, शुहदा हो, जहां उनकी कब्रें हो वहां अल्लाह की रहमत बरसती है। और अल्लाह की रहमत जब जहां बरस रही होती है तो बाकी जो लोग वहां पर जाके अल्लाह से बख्शिश मांगे वो भी रहमत के सदके बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह पाक उन नेक स्वालिहीन औलिया सहाबा या अंबिया के सदके गुनाहगारों को बख्श देता है। ये हदीस और कुरान शरीफ से हमें मालूम हुआ। अच्छा, अब कुरान शरीफ की इस आयत मुबारका से यह मालूम हुआ, बुखारी शरीफ में एक हदीस मुबारका है और उसमें वाकया जिक्र किया गया है, तवील वाकया है, उसको मुख्तसर जिक्र करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को वाकया बताया। फरमाया कि पिछली उम्मतों में एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए हुए थे, मशहूर वाकया है। फरमाया 99 उस बंदे ने कत्ल किए हुए थे। अब उसको शर्मिंदगी हुई, उसको अपने गुनाहों पर अफसोस हुआ कि ये मेरे से बहुत गलत हुआ है। तो अब उसने सोचा कि तौबा करूं। वो किसी ऐसे शख्स के पास गया जिसने दीनी हुलिया अपनाया हुआ था, यानी शक्ल शबाहत उसकी दीनदार लग रही थी। उससे उसने पूछा कि मैंने इतने कत्ल किए, क्या अल्लाह पाक मुझे माफ कर देगा? उस बंदे को शायद पता नहीं था अल्लाह की रहमत का या गुनाहों की तौबा पर कि अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है। उसने कहा नहीं। उस बंदे ने उसको भी कत्ल किया। अब फिर मजीद उसको शर्मिंदगी हुई, फिर किसी और बंदे के पास गया, आलिम के पास गया। अब आलिम से पूछा तो आलिम साहब ने कहा कि अल्लाह पाक तौबा कबूल फरमाता है, लेकिन तुम ऐसे करो, वो फुलाम बस्ती है वहां चले जाओ, वहां पहाड़ की दूसरी तरफ बस्ती वाले रहते हैं, वहां नेक लोग हैं, वहां नेक लोग हैं, अल्लाह की इबादत में लोग मसरूफ है, तुम भी जाकर उनके साथ इबादत में मसरूफ हो जाओ, अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब ये शख्स यहां से चला, रास्ते में इसका इंतकाल हो गया, रास्ते में इंतकाल हो गया, अभी ये उनके पास पहुंचे नहीं, रास्ते में इंतकाल हुआ। अब उसकी मैयत को लेने के लिए, उसकी रूह को लेने के लिए अजाब के फरिश्ते भी आ गए, रहमत के फरिश्ते भी आ गए। याद रखें, यह हदीस मुबारक बुखारी शरीफ में बहुत मशहूर हदीस है। फरिश्ते अजाब वाले भी आ गए, रहमत वाले भी आ गए। तो अब अजाब वाले फरिश्तों ने कहा कि भाई अभी तो इसने तौबा ही नहीं की, लिहाजा इसको हम लेके जाएंगे। रहमत वाले फरिश्तों ने कहा कि भाई ये तौबा की नियत से जा रहा था नेक लोगों की तरफ, हम इसको लेके जाएंगे। आप अल्लाह पाक की रहमत पे
कैसा गौर फिक्र करें, रश्क आता है। अब अल्लाह पाक ने एक और फरिश्ते को भेजा कि जाके इन दोनों के दरमियान तुम फैसला करो। वो तीसरा फरिश्ता आया, उसने कहा कि भाई ऐसा करो, ये जहां से चला था अपने घर से उस जमीन का हिस्सा नापो और जिस तरफ जा रहा था वहां का हिस्सा भी नापो, जिसके करीब हो वो वाले उसको ले जाए। अब अल्लाह पाक ने जमीन को हुक्म दिया, जो उसके घर का फासला था उसको कहा कि तू फैल जा। जमीन फैल गई, फासला ज्यादा हो गया। अब दूसरी तरफ जमीन को हुक्म दिया कि तू सुकड़ जा, वो सुकड़ गई तो उसका फासला कम हो गया। अब जब जमीन को नापा गया, फरिश्तों ने नापा, तो अब जिस तरफ वो नेक लोगों की बस्ती में जा रहा था वो फासला कम था। अब वो रहमत वाले फरिश्ते उस बंदे को ले गए। ये है कि बंदा अल्लाह के नेक लोगों की तरफ जाए तो उसकी वजह से भी बंदे को रहमत मिलती है और उसकी वजह से भी बंदे के गुनाह माफ होते हैं। यही बरकतें हासिल करने के लिए बंदा औलिया से, सालिहीन से ताल्लुक रखता है। जैसे बुखारी शरीफ में ये हदीस मुबारक बयान की गई, तो कुरान शरीफ की आयत मुबारक में भी यही जिक्र किया गया है। अब जहां यह जिक्र किया गया है, पहले भी एक बात कही कि अल्लाह ताला सुनता तो सब की है। अल्लाह पाक, मैं यहां दुआ करूं, आप दुआ करें, फलां दुआ करें, सब दुआ करें, अल्लाह पाक सब की सुनता है, लेकिन मानता अल्लाह पाक किसी किसी की है। ऐसा है या नहीं है? बाज़ औक़ात लोग, हर बंदा दुआ करता है, कई सारी दुआएं करते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं हमारी कबूल नहीं होती। लेकिन अल्लाह पाक हदीस मुबारक में है, अल्लाह पाक फरमाते हैं जब मेरा कोई वली बंदा मुझसे दुआ मांगता है तो मैं जरूर बजरूर उसकी दुआ कबूल करता हूं। जब वो मुझसे पनाह मांगता है तो मैं उसको पनाह देता हूं। ये मेन जो हदीस मुबारक है, ये बड़ी हदीसों में है बुखारी शरीफ में। तो औलिया जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी बरकतें बंदे को मिलती है। तो अब मालूम हुआ कि जो अल्लाह के बंदे नेक होते हैं, हम उनसे दुआ करें या उनसे दुआ करवाएं, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, उनकी बरकत से अल्लाह पाक रहमत भी फरमाता है, उनकी बरकत से अल्लाह पाक बख्शिश भी फरमाता है। जैसे उस 100 अफराद के कातिल बंदे को अल्लाह पाक ने सिर्फ इस वजह से बख्श दिया कि वो नेक लोगों की बस्ती में जा रहा था। वो औलिया अल्लाह की बस्ती, उनके वहां रहने के लिए जा रहा था, बख्शिश के इरादे से जा रहा था, तो अल्लाह पाक ने क्या किया, उसको बख्श दिया। अब इससे हमें मालूम हुआ कि अल्लाह पाक नेक लोगों की बरकत से बख्श देता है। जैसे बनी इसराइल को हुक्म था कि तुम बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो और वहां पर यह कहते हुए दाखिल हो वक़ूलू हित्ततुन, कि हमारे गुनाह मुआफ हो। जब तुम ऐसा करोगे तो अब तुम्हें क्या मिलेगा, नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे, हम तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर देंगे। ये लोग पहले मैदान तिया में यहाँ कैद थे, 40 साल के बाद आजादी मिली, बगैर मेहनत के, बगैर जंग के, बगैर मुशक्कत के बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए। तो अब इन्हें हुक्म दिया गया, और जो पहले इन्होंने नाफरमानी की थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इनको जाने का हुक्म हुआ, वहां जाओ और कौम मलका से जंग करके बैतुल मुक़द्दस, अपना मस्जिद अक़सा जो तुम्हारा पहला मस्कन था, उसको वापस छुड़ाओ। नाफरमानी की। अल्लाह ने फरमाया अब इस नाफरमानी का जो ये तुम्हारा जुर्म था, इसका इजाला ऐसे हो सकता है कि वहां जहां मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द वहां अंबिया की कब्रें हैं, औलिया की कब्रें, तुम वहां पर दाखिल और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे नेक लोगों की बरकत से। लेकिन उन्होंने उसको नहीं किया, बख्शिश की दुआ भी नहीं मांगी। जो उन्हें कहा गया उन्होंने उसको बदल दिया। उन्हें कहा गया कि तुम क्या करो, अल्लाह से अपनी बख्शिश मांगो, उन्होंने बख्शिश नहीं मांगी बल्कि दूसरे अल्फाज कहते गए। उन्हें कहा कि तुम जब मेन मरकजी दरवाजे से, मेन गेट से दाखिल हो तो अपने सरों को झुकाकर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो, नहीं किया ऐसे। अब उन्होंने अल्लाह के अहकाम को बदला, अल्लाह के अहकाम को बदला, अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। ये जिक्र कुरान शरीफ में है। अच्छा, अब हम अपने तौर पे एक सवाल करें, बनी इसराइल को यह हुक्म था कि तुम बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो, अपनी बख्शिश की दुआ मांगते रहो और सर को झुका के चलो। हम सोचें अगर अल्लाह हमें यह हुक्म देता तुम बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो, अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगो, तो क्या हम करते? आज हमारे जज्बात तो यही होते, भाई हम अल्लाह की बात कैसे नहीं मानते? हमारे ईमान के जज्बात तो यही होंगे ना, भाई अल्लाह हमें हुक्म दे, हमारी क्या मजाल है हम अल्लाह का हुक्म ना माने।
हमारी क्या मजाल है कि हम अल्लाह के हुक्म को बदलें? हम क्यों बदलेंगे? या जहन्नम जाना है? भाई हर बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह को जानता है, अल्लाह पे ईमान लाता है। तो अगर हमें ऐसे हुक्म होता तो हम भी यही हमारे जज्बात होते। और हम अभी बनी इसराइल के बारे में सोचें तो हमें लगता है कि बनी इसराइल ने बहुत गलत किया, बनी इसराइल ने बहुत गलत किया, नाफरमानी की। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था कि अल्लाह के उन पर इतनी सारी नेमतें थी, इनामात थे, इसके बावजूद अल्लाह का हुक्म नहीं माना, अल्लाह की नाफरमानी की। उनको देख के आज हम खुद देखें, इतने सारे अहकाम अल्लाह ने हमें दिए हुए, लेकिन बनी इसराइल की तरह हमने उसको बदला हुआ है। हकीकत है, हमने बनी इसराइल की तरह अल्लाह के उन अहकाम को बदला हुआ है। जो दीन इस्लाम हमें कह रहा है, हमने उनको बदला हुआ है। बहुत सारे हमारे दीन इस्लाम में बिल्कुल जैसे बोलते हैं प्योर साफ अल्फाज में हुक्म दिया गया कि ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है। हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हलाल बय्यिनु वल हराम बय्यिनु, कि हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है, इसके जो दरमियान है वो शक व शुबे वाली बात है, तुम उसको छोड़ दो। जिस पे तुम्हें यकीन हो कि ये वाज़े तौर पे हलाल है वो करो, जिस पे तुम्हें यकीन हो कि ये हराम है उसको छोड़ दो। अब जिस पे तुम्हें तजब्जब हो, कंफ्यूजन हो कि पता नहीं ये हलाल है हराम है, मालूम नहीं इसके बारे में क्या हुक्म है, इसको छोड़ दो। इसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या करो, इसको छोड़ दो, शक व शुबहात वाली बात को छोड़ दो। लेकिन हम उसको बदल देते हैं। इसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मिसाल बयान फरमाई। आज के जमाने में भी हम देखें, गांव देहात में जैसे खेत होते हैं, हर एक बंदे का अलग अलग खेत होते हैं, जमीन में जो चीजें उगाई होती है, बीच में छोटी सी मुंडेर बनी होती है। एक बंदा बकरियां चराने के लिए जाए, बकरी तो जानवर है, बंदा अपने खेत में चरा रहा है, बकरी इधर चली गई, बकरी दूसरे खेत में चली गई। अब जब तक बंदा उसको भगाने के लिए जाएगा, उसको रोकने के लिए जाएगा, बकरी ने कुछ ना कुछ खाए लेना, नुकसान कर लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे कुछ अल्लाह की हुदूद हैं। क्या है? ऐसे ही अल्लाह की हुदूद है जैसे हर बादशाह की हुदूद होती है। लिहाजा तुम हराम काम न करो, ये अल्लाह की हदें हैं। ये क्या है? ये अल्लाह की हदें हैं कि बंदा कोई हराम काम में मुब्तला हो जाए। हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है। जो हलाल है उसको करो, जो हराम है उसको छोड़ दो। जिस पे तुम्हें कंफ्यूजन हो उसमें पढ़ो ही नहीं, उसमें पढ़ो ही नहीं, उसको छोड़ दो। हमें यह हुक्म दिया गया है, हम इस पर अमल करें। और इसी तरीके से नात अच्छी बात है। नात क्या है? अच्छी बात है। नात सुनना अच्छी बात है, लेकिन नात के साथ अब वो दफ म्यूजिक वो चीजें आती, वो गलत है। हम अच्छी चीज के साथ गलत चीजों को मिला चुके हैं। ये वही बात है कि अल्लाह के हुक्म का हमने बदला हुआ है। ये क्या है? हमने अल्लाह के हुक्म को बदला हुआ है। दीन इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाढ़ी पूरी रखो, एक मुट्ठी दाढ़ी रखो, मूछें कम करो। हमने इसको बदला हुआ है। हम दाढ़ी को मुख्तलिफ तरीकों से तराशते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुफार की मुशाबहत इख्तियार न करो। हमने कुफार वाले फैशन अपनाए हुए हैं। ये अल्लाह के अहकाम को, दीन इस्लाम के अहकाम को बदलने वाली बात है, जैसे बनी इसराइल ने बदला है। क्या हम बनी इसराइल की तरह नाफरमानियां नहीं कर रहे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल ने जब अल्लाह की वो नाफरमानी की कि उन्हें हुक्म हुआ बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो, गुनाहों की बख्शिश मांगो, सर झुका के चलो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो उन पर आसमान से ताऊन की बीमारी आई, आसमान से अजाब नाजिल हुआ, और आनन फानन देखते ही देखते 70,000 इसराइली उसी टाइम फौरन कत्ल हो गए, उसी टाइम फौत हो गए। ये उन पर अजाब नाजिल था। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। दीन इस्लाम के जैसे जैसे अहकाम हैं उसी तरह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक हदीस मुबारका, हजरत बरा बिन आज़िब सहाबी रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दुआ सिखाई कि जब रात को सो तो ये दुआ पढ़ो, आमनतु बि नबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, यानी या अल्लाह मैं ईमान लाया तुझ पर और तेरे रसूल पर जिसको तूने भेजा है, तेरे नबी पर। हजरत बरा बिन आज़िम सहाबी कहते हैं कि जब नबी पाक ने मुझे सिखाई, मैंने नबी पाक को सामने दोहराया, उसको रिवाइज किया, फिर मैंने
जो नबी पाक ने अल्फाज बताए थे, आमनतु बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया। मैंने कहा आमनतु बिरसूलिकल्लज़ी अरसलता, लफ्ज सिर्फ नबी का की जगह मैंने रसूल का, सिर्फ रसूल का लफ्ज कहा। हालांकि देखने में कोई खास माने में चेंज नहीं आ रही, नबी और रसूल एक ही होता है, रसूल का रुतबा ऊंचा होता है। तो सहाबी फरमाते हैं जब मैंने कहा आमनतु बिरसूलिकल्लज़ी अरसलता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया है ऐसे ही पढ़ो, जैसे पढ़ाया वैसे ही पढ़ो, इसको बदलो नहीं। फरमाते फिर मैंने वैसे ही पढ़ा, आमनतु बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। यह हदीस मुबारका से हमें मालूम हुआ कि जैसे जिस तरह हमें अहकाम दिए गए हैं उसी तरह अमल करना हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह हमारे लिए अमल करना जरूरी है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।